जय मसीह की। वी वेलकम यू टुडे। आज हम लोग कुछ नया और इंटरेस्टिंग फिर से आपके लिए लेकर आए हैं। बट बिफोर वी बिगिन, लेट्स लुक टू गॉड इन प्रेयर। आइए हम प्रार्थना करेंगे। Lord, we thank you for this wonderful, amazing day that you have given us. We thank you, Lord, for your blessing and grace that is upon us. Father, we commit each and everyone who is watching us right now, all the children who are joining us, Lord. Father, thank you so much for your gracious presence is upon us. Lord, bless us and guide us today. In the name of Jesus, we ask this prayer. Amen. So today we have some new friends who have joined us. आइए हम अपने नए दोस्तों का वेलकम करें। Hi, I am Shifa. Hi, I am Adya. Hi, I am Caroline. Hi, my name is Shiny. Hi, my name is Abhishek. Hi, I am Paul. He takes care, just like the moon and the stars at night. God takes care of me. He takes care. God takes care of me. He takes care. Oh, oh, you take care. Oh, oh, you take care. Oh, oh, you take care. God takes care of me. He takes care. God takes care of me. He takes care. Just like the lilies in the fields that grow, God takes care of me. He takes care. God takes care of me. He takes care. Just like the fireflies and they glow, God takes care of me. He takes care. God takes care of me. He takes care. Oh, oh, you take care. Oh, oh, you take care. Oh, oh, you take care. God takes care of me. He takes care. God takes care of me. He takes care. Oh, oh, you take care. Oh, oh, you take care. Oh, oh, you take care. God takes care of me. He takes 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 care. I am going to read a Bible verse for you from the book of Psalm, chapter 1, verse 1 and 2. Let's read it together. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers, but his delight is in the law of Lord, and on his law he meditates day and night. Thank you. मैं आपके लिए भजन संहिता चैप्टर 1 वर्स 1 एंड 2 पढ़ना चाहता हूँ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, और इसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। धन्यवाद। लास्ट संडे हमने सुना कि मोसेस एंड एरन किंग फैरो से मिलने के लिए अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। बट फ्रेंड्स, टुडे वी विल सी हाउ माइटी आवर लिविंग गॉड इज एंड हाउ मच ही लव्स अस। सो अब मोसेस एंड एरन किंग फैरो के पास पहुंचते हैं। And they said to King Pharaoh, the Lord God of Israel says, let my people go, so that they hold a feast for me in the desert. इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए उपासना करें। For which King Pharaoh replies, वो कौन है कि मैं उसकी बात मानूं और इज़राइलियों को जाने दूं? तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो और यहाँ से जाओ, क्योंकि मैं किसी यहोवा को नहीं जानता। Moses again pleads to king and says,
the God of Hebrews has met with us. Please let us go on a 3-day journey to the desert and sacrifice to the Lord our God, so that he will not attack us with plague or with the sword. जाने दे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो हम पर मरी फैलाए और तलवार चलाए. With much anger, King Pharaoh says, "Why do you want the people to leave their work? Get back to work, everyone." But as mentioned earlier in the first part of the story, King Pharaoh was very scared of Israelites leaving the country. So he thought of an idea. किंग फ़ैरो को ये कभी मंजूर नहीं था कि इतनी बड़ी वर्किंग कम्युनिटी जो उसके कंट्री के लिए लेबर का काम कर रही है वो कंट्री को छोड़कर जाए, और इसीलिए उसने ये ऑर्डर दिया. ही सेड, ये इजराइलियों के काम को और ज़्यादा बढ़ा दो और बहुत ब्रिक्स बनवाओ, और ब्रिक्स बनवाने के लिए जो सामान लगता है वो भी उनको मत दो. मतलब ये कि रॉ मटेरियल्स भी उनको खुद ही जुगाड़ करना पड़ेगा और ब्रिक्स भी उनको खुद ही बनाना पड़ेगा. टाइम और मनी दोनों में कोई बदलाव नहीं आएगा. फ्रेंड्स, आप इमेजिन कर सकते हैं कितना कुछ सह रहे थे ये इजराइट्स. मगर ये सब क्यों हुआ? उनका लिविंग गॉड क्या उनके साथ नहीं था? क्या गॉड ऑफ एब्राहम, गॉड ऑफ आइजैक, गॉड ऑफ जोसेफ सारा प्रॉमिस भूल गए थे? ये इजराइट जो अब्राहम, आइजैक और जोसेफ के 4th जनरेशन थे, गॉड इनसे क्या बहुत एंग्री थे? क्या था रीजन कि ये इजराइट्स इतना दुख उठा रहे थे? Yes, my dear friends, they had moved away from the presence of God, and that is why they were subjected to so much of trouble and pain. But God is a God who forgives, and that is the reason कि मोसेस उनको बचाने के लिए वहां पहुंच गया था. Now everyone in Israelite community was so angry at Moses. ये तो नेचुरल था, क्योंकि ये मोसेस ही था जिनकी वजह से उनको इतना काम करना पड़ रहा था. The people were so oppressed that इजराइलियों के कुछ सरदार किंग फ़ैरो के पास जाके बोले, Why are you doing this with us? बट किंग फ़ैरो सारी बातों को अनसुनी कर देता है और बोलता है, तुम सब आलसी हो और कुछ नहीं करना चाहते. जाके अपना काम करो और यहाँ से चले जाओ. There will be no relaxation on the work that you are doing. While all this was going on, Moses and Aaron was now hated and disliked by the entire Israelites. Imagine the situation of Moses. वो एक इजरायली था, लेकिन उसकी कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही थी. वो एक इजिप्शियन घर में बड़ा हुआ, आज वो घर भी उसको समझ नहीं रहा था. And then he goes back to God and says, God, why are you doing this to your people? And why have you sent me here? जब से मैं आया हूँ यहाँ फ़ैरो और भी ज़्यादा ईविल तरीके से बिहेव कर रहा है. And God, you are just doing nothing? There are so many times that we pray like this, isn't it? For this God answers. He says, अब तू देख मैं फ़िरौन के साथ क्या करता हूँ. And friends, you cannot imagine what God did. Now Moses and Aaron went several times to King Pharaoh to plead and ask him to let the Israelite go. But every time there was a big no. Moses and Aaron काफ़ी बार फ़िरौन के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो उनको जाने दे, मगर हर बार एक नेगेटिव रिप्लाई आया. हर बार फ़िरौन ने कहा नहीं. और जितनी बार किंग फ़िरौन ना बोला, उतनी बार एक बहुत बड़ी विपत्ति, एक बहुत बड़ा ट्रबल आया. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि he wasn't saying no to Moses. He was saying no to the God's people, the beloved children of God. The first plague or the trouble was that the water of river Nile turned into blood. पहली विपत्ति जो आई वो ये थी कि नील नदी का पानी ब्लड में बदल गया. सारे फिशेस मर गए और वाटर में बहुत बदबू आने लगी. इतना ही नहीं फ्रेंड्स, जो पानी घरों में स्टोर्ड था वो भी ब्लड बन गया. उनके पास पीने तक का पानी नहीं था. What Pharaoh did here?
He says, तो क्या ये कोई बहुत बड़ी मिरेकल नहीं है? और अपने मैजिशियंस को बुलाया और सेम चीज को करने के लिए बोला और फिर वहां से चला गया. Cause now God had hardened his heart. But why did God do this? He did it because to show to Pharaoh that he is indeed the living God. Whatever you do, you cannot be more than your creator. Egypt, being a powerful country, उसके पास सब कुछ था. इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग भी थे और इसीलिए वहां लोग वही करते थे जो उनका मन करता था. कई प्रकार के पाप, कई प्रकार की बुराइयां, और वो लोग लिविंग गॉड को अपना गॉड तक नहीं मानते थे. उनके पास अपनी ही कुछ डीटीज थी, अपनी ही कुछ देवी देवताएं थे. द सेकेंड प्लेग गॉड सेंट वॉज द प्लेग ऑफ फ्रॉग्स. दूसरी विपत्ति जो आई वो थी कि पूरा इजिप्ट लाखों करोड़ों हजारों फ्रॉग्स से भर गया. इतना ही ज्यादा फ्रॉग कि बेड पे भी फ्रॉग्स थे. कितना ही गंदा लगता होगा, है ना? जहां देखो वहां फ्रॉग्स. फिर किंग फैरो मोसेस से बोलता है, मोसेस, अगर तू अपने गॉड से प्रेयर करके फ्रॉग्स को हटा दे तो मैं तुम लोगों को जाने दूंगा. मोसेस सेड, okay, I will pray and let it be according to what you are saying, so that you know that there is only one living God. But friends, after the frogs went, Pharaoh again became stubborn and said a big no. The third plague that came was gnats, कुटकियों का झुंड. ये एक प्रकार के बग्स या कीड़े हैं जो शायद मच्छर के प्रजाति के होंगे. ये सबको परेशान करने लगे, एनिमल्स तक को भी. फिर जैसे हर समय म्यूजिशियंस को बुला के फैरो दोबारा से सेम चीज करवाता, वैसे ही इस बार भी करवाया. मगर ये म्यूजिशियंस इस बार एक बात समझ गए और सारे म्यूजिशियंस ने बोला, किंग फैरो, ये सब मजाक में मत लीजिए, ये सब परमेश्वर के हाथ का काम है. किंग फैरो को फिर भी समझ नहीं आया और उसका मन और भी ज्यादा कठोर हो गया. द फोर्थ प्लेग दैट केम वॉज द फ्लाइज. अब इजिप्ट फ्लाइज से भर गया. मगर यहाँ कुछ डिफरेंट हुआ. इजराइट्स रिवर नाइल के डेल्टा के नॉर्थ ईस्ट में रहते थे, जिसका नाम था गोशेन. ये स्वैम्स ऑफ फ्लाइज सब तरफ था, मगर इजराइट्स जहाँ रहते थे वहाँ नहीं था. God had made a clear distinction between the people of Israel and the people of Egypt. Now, if you love God, if you run behind God, if you ask Him to be with you, He will keep you away from all troubles. Friends, troubles तो आएंगी, मगर ये आपके हार्ट और आपके स्ट्रेंथ को कभी टच नहीं कर पाएगी. आपको कभी भी डिप्रेस नहीं होने देगी, आपको कभी भी कमजोर नहीं होने देगी. नाउ किंग फैरो वॉज अ स्मार्ट गाय. बहुत ही तेज और चतुर और क्लेवर इंसान था फैरो. वो बोलता है, ठीक है, जाओ अपने परमेश्वर की आराधना करो, लेकिन तुम इजिप्ट के अंदर ही वर्शिप के लिए जाओगे. बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता था अगर ये बाहर गए तो वापस नहीं आएंगे और फिर उसका काम कौन करेगा? उसके एक्सपोर्ट का बिजनेस खत्म हो जाएगा. इस बात पे मोसेस बोलता है, नहीं, क्योंकि मोसेस से बेहतर इजिप्शियंस को और कौन जानता था? वो तो उसी पैलेस का था ना. मोसेस सेज, we will sacrifice what you Egyptians don't like, and when we do that, तुम लोग हमें मार दोगे. And so, no, we can't do that. Please let us go, says Moses again. King Pharaoh says, okay, I will let you go. लेकिन ज्यादा दूर मत जाना. अब मेरे लिए प्लीज प्रेयर करो और ये विपत्ति हटाओ. Moses prays, and after things became all right, there is no change in the attitude of King Pharaoh. The fifth plague was that all the livestock which provided basic necessities like milk, meat, leather, wool all died. जितने भी donkeys, cows, horses, sheep थे सब मर गए. A
अब इजिप्ट के एक्सपोर्ट बिजनेस को बहुत धक्का लगा और यहाँ फिर से इजराइलाइट्स के लाइफ स्टॉक को गॉड बचा लेते हैं, मगर इजिप्शियंस के सारे लाइफ स्टॉक्स मर जाते हैं। किंग फेरो इस बात से बहुत ह्यूमिलेट फील करता है और अपने डिसीजंस में और स्ट्रांग हो जाता है कि अब चाहे जो भी हो जाए वो इजराइलियों को जाने नहीं देगा। The sixth plague was boils. अब पूरे इजिप्ट में लोगों को फोड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि मैजिशियंस को भी फोड़ा हो जाता है और सब इस स्किन डिजीज से बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन फिर भी क्रूएल फेरो का मन नहीं बदलता है और वो और भी ज़्यादा हार्ड हार्टेड बन जाता है। द सेवेंथ प्लेग वॉज दिस दैट पूरे देश में हेल स्टॉर्म आता है। द सेवेंथ प्लेग या सेवेंथ विपत्ति ये होती है कि पूरे देश में हेल स्टॉर्म आ जाता है। हेल स्टॉर्म से पूरा इजिप्ट परेशान हो जाता है। यहाँ पर गॉड सेंड्स मोसेस टू फेरो टू टेल दैट तू अगर मेरी प्रजा के लोगों को जाने नहीं देगा कि वे मेरी आराधना करें, तो इस बार ऐसी विपत्ति आएगी जिससे तुम जान जाओगे कि देयर इज नो अदर गॉड अदर देन मी। बट किंग फेरो सेज, जो भी हो तुम दिन भर बकवासी करते हो, एंड ही टर्न्स अ डेफ ईयर टू हिम। आफ्टर अ वाइल देयर वाज अ ह्यूज मैसिव हेलस्टॉर्म और सारा क्रॉप, सारे एनिमल्स, जो कुछ भी बाहर फील्ड में थे, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इट वॉज हेवी डिस्ट्रक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ इजिप्ट। एंड नाउ किंग फेरो हैड नो अदर वे बट टू से, ओके मोसेस एंड एरन, मैं और मेरी प्रजा पापी हैं और अब यहोवा ही धर्मी है, प्लीज प्रे करके बंद करवाओ, मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। फिर मोसेस प्रेयर किया, हेलस्टॉर्म भी बंद हो गया, लेकिन फिर भी किंग फेरो का मन कठोर ही रहा और वो इजराइलियों को जाने नहीं दिया। The eighth plague was the attack of locust. अब इजिप्ट में ढेर सारे टिड्डियों का अटैक हुआ, लेकिन उससे पहले कि टिड्डियां आती, गॉड सेंट मोसेस टू फेरो टू से दैट इफ यू डोंट लेट माई पीपल गो, आई विल सेंड लोकस्ट which will eat all your crops and food, for which Pharaoh says, मैं सिर्फ मेल मेंबर को ही जाने दूंगा। And with frustration and anger, he throws Moses out of the palace. God asks Moses to lift his staff, and the entire country gets filled with locust. And ये टिड्डियाँ सारा crops और सारा food खराब कर देती हैं. And it is recorded as the massive destruction in the history of Egypt. Then again Pharaoh asked Moses to pray. He prayed and the locust went into the sea. But still, my friends, what happened? Yes, you know that by now God had hardened the heart of Pharaoh. The ninth plague that came in Egypt was darkness. अब फिर एक बार गॉड सेड टू मोसेस, हाथ आकाश की ओर बढ़ा और इजिप्ट में डार्कनेस हो गया फॉर 3 लॉन्ग डेज। बट लुक एट गॉड्स हैंड ऑन इजराइलिट्स, उनके गोशेन में कोई अंधकार नहीं था। हाउएवर इजिप्ट हैड टोटल डार्कनेस। देन फेरो कॉल्ड मोसेस एंड सेड, ओके, गो विथ ऑल मेन एंड वुमेन and children, but leave your livestock. जाओ, अपने पूरे लोगों के साथ जाओ, मगर अपने एनिमल्स को छोड़ कर जाओ। For which Moses says, but we have to sacrifice animals. How can we leave them? हम ऑफरिंग में तो एनिमल्स को ही चढ़ाएंगे और ऑफरिंग का सामान हम कैसे ले जाएंगे? नहीं नहीं, एनिमल्स को तो जाना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। For this Pharaoh got so angry that he screamed, तू यहाँ से चला जा और दोबारा अपना मुंह मत दिखाना। And Moses went from there. Friends, now the last plague was terrible, but God is a merciful God. ज़्यादा दिन तक वो अपने लोगों से ऐसे दुखी नहीं रह सकते। गॉड का नेचर है कि वो मर्सीफुल हैं, वो हमें माफ़ करते हैं, हमारे सिंस को फॉरगिव करते हैं।
जैसे एक ट्री का नेचर है कि वो ऑक्सीजन देता है, वैसे ही गॉड का नेचर है कि वो चांसेस देते हैं. He forgives us, and that's what he did. He decided to stop the plague, and he said to Moses, "This is the last time I will do something, and he will let you go." एक और विपत्ति मैं फिरौन और इजिप्ट में डालता हूँ, उसके बाद वो तुम लोगों को जाने देगा. But listen carefully, Moses. Get the Israelites prepared to face this plague and ask them to get ready to leave Egypt. So now सारे Israelites ये जान गए थे that there is only one living God. They got ready to leave the country, and they did exactly as the Lord had instructed Moses. Now, in the middle of the night, the plague came. Midnight में ये विपत्ति आई. जितने भी firstborn Egyptians थे, सब मर गए. Even the firstborn of the animals died. Can you imagine, friends? God took the revenge. Remember, the Egyptians killed the firstborn of the Israelites, from which Moses got saved. Years later, God did the same. However, God was not done with the Egypt yet. He wanted to do some more miracles, so he kept the heart of Pharaoh hard. God Egypt में आश्चर्य कर्म करना चाहते थे और इसीलिए किंग फ़ैरो का मन कठोर ही रहा. However, God helped the Israelites to leave the country as the officials of Egypt had understood the mighty power of God and had seen his favor on Israel. Friends, आपने देखा God can do everything. All that you need to do is pray, pray and pray. Look to God for everything. आप हमेशा हर चीज के लिए प्रेयर करें, उनकी ओर देखें, cause he helps us and he loves us. वो हमारी मदद करते हैं और हमसे बहुत प्यार करते हैं. And thus it is written in Psalms chapter 91 verse 9, 10 and 11. Because you have made the Lord, who is my refuge, the Most High, your habitation, no evil will befall you, no disaster will come near your dwellings. For he will give his angels orders concerning you to protect you in all your ways. और जैसा लिखा है भजन संहिता चैप्टर 91 वर्स 9, 10 और 11 में, हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है. तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें. So friends, I hope you are blessed by the story. मैं आशा करती हूँ कि आप इस स्टोरी से बहुत आशीष पाए हैं. तो चलिए आज की मेमोरी वर्स को देखें, जो है भजन संहिता चैप्टर 91 वर्स 11. क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें. For he will give his angels orders concerning you to protect you in all your ways. फ्रेंड्स, मैं आपको एनकरेज करूंगी कि ये मेमोरी वर्स आप अपनी डायरी में लिख लें और प्रतिदिन इसे याद करें और इसे पढ़ें. Always remember that God loves you, He takes care of you because you are beautiful and precious. प्रभु को धन्य कहेंगे, स्तुति हमेशा गाएंगे, नाचते हुए करे प्रशंसा. प्रभु अब तक मुझे संभाला, मुझे आजादी देने वाला. प्रभु को धन्य कहेंगे, स्तुति हमेशा गाएंगे,
What did we learn today? आज हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ हैं. God is there with us always and forever. He is capable of taking us out of our troubles and out of pain. जिस तरीके से उन्होंने इज़राइलाइट्स को उनके पेन और उनकी बंधवाई से निकाला था, उसी प्रकार आज भी परमेश्वर हमें हमारी परेशानियों से, हमारी तकलीफ़ों से आज़ाद करने की सामर्थ रखता है. So are you excited for this wonderful God's promise, for this wonderful grace that He has for us in our life? Yes. What we have to do is we have to pray to God every day. We have to read the Bibles regularly. So thank you for being with us, for listening to us, and for learning something. Let's bow our heads and end this program with a small word of prayer. Thank you, Lord, for your grace and your mercy that is there with us. Thank you, Lord, that you have forgiven us from our sins. Lord, I commit all the children into your mighty and precious hand. Lord, meet all their needs. Give them wisdom, knowledge, and understanding to do their studies properly. Lord, help them, Lord, to obey their parents. Remove all kinds of stress from their life, Lord, and let your children glorify your name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for everything. In Jesus' precious name we pray. Amen. अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ साथ बनी रहे. आमीन. Thank you once again. We love you. Take care of yourself. Bye bye.